This is that's your question. Okay, Devashish sir, what is Joram movie about? Joram is the story of this Adivasi man who's a father. He has a 3-month-old baby. Something happens and he's on the run. And as he's running from Bombay, from a construction site where he was a migrant labor, all the way back to the jungles of Jharkhand where he came from when he was a kid, the story starts revealing itself. Why he's on the run, all the things that went wrong in his life. And through this thrilling, chase, adventure, genre kind of film, we're trying to raise questions of displacement, of how development has a certain section of this country paying a price for it, while the rest of us in the city are enjoying the benefits. So Tasru represents that Adivasi community who are displaced and whose resources actually feed the development that we see, the kind of development we see in this room. So it's those questions that we try to place before the audience through a thrilling chase crime film. मनोज सर, हमने आपको कई किरदारों में देखा है, यू नो, 2 कैरेक्टर्स जिसपे आप सब सीखी बजा सकते हैं, वो है सरदार खान एंड भिकू माते है। ये जो रोल है दसरू का, वो टोटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू हैव डन। इस कैरेक्टर में आप बहुत ही रॉ एंड रूटेड लग रहे हैं, तो ये कैरेक्टर प्ले करना आपके लिए कितना डिफिकल्ट था एंड क्या प्रिपरेशंस आपने की थी फॉर दिस रोल? देखिए, हर तरीके का रोल करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अगर मैं एक्टर हूँ तो मैं सिर्फ एक तरीके के कैरेक्टर और एक तरीके की फिल्में अगर मैं करूँ तो मैं लिमिटेड हो जाऊँ। इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को सरप्राइज करता हूँ। या मेरा जो एक्टर है, the actor should be growing, evolving with each and every film. So that is why I take my roles very seriously. I prepare them with great intensity. Yes, it doesn't. My preparation mostly is within the 4 walls of my house, or it's a very lonely process. But initially, I always sit with my directors, try to understand their vision and what he wants from his actor for this character. And then also, Devashish keeps sending me a few notes. On the basis of all of that, I do my own work on the script, and I choose a process for each and every film and or the role that I'm doing. The process for this one was to get into the skin of the cat. I realized that Devashish is not going to give me too many words, and words can fool people. An experienced actor can actually fool the audience or the director or anyone with his ability to get in the craft with the words. But when you don't have words, then actor is left with no other choice but he has to work very hard to mentally and physically to get into the character. And with each and every frame of his body, with each and every batting of the eyelid, he has to portray, he has to let the people know about the pain, the conflict, the misery, the happiness, all the emotion through his eyes to the audience. And cameras are very sharp, film cameras, they are very advanced nowadays. You can't fool them. So when you have these kind of roles, an actor has to be very cautious. He has to be 200% with the character, in the skin of the character, and there is no other choice. सर, आपने मनोज सर को क्या ब्रीफ दिया था? सर ने कहा कि वो पूरा तो नहीं बता पाएंगे, बट एज आपने कैरेक्टर लिखा होगा तो आपके बैक स्टोरी कुछ होगी जो आपके जहन में होगी, तो आपने क्या ब्रीफ दिया था सर को? मनोज सर और मेरा ये तीसरा फिल्म है एक साथ, तो आई थिंक वो डे 1 से जब हमने भोसले पे काम शुरू की, उसके बाद हमने बीच में एक फिल्म बनाई तांडव, फिर भोसले बनी जोरम। हर फिल्म कई सालों का रिश्ता था। भोसले भी मैं 2014 में गया इनके पास, 2017 में बनी, 2020 में रिलीज हुई।
ये स्क्रिप्ट मैं 2016 में ले आया था, 2021 में बनी, 2023 में रिलीज हो रही है। तो मैं ब्रीफ बोल के कोई चीज़ नहीं है जो मैं देता हूँ, वो बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस होती हैं, क्योंकि एक स्क्रिप्ट वो रोड मैप होता है, वो मैप खोल के फिर हम वो रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, और वो चलते चलते, और रोड मैप ऐसा कि वो गूगल मैप नहीं है, वो एक जंगल का मैप है। तो आप कहीं जाते हो और वहाँ पे कुछ उग गया और आप यहाँ से नहीं जा सकते, आपको दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। तो वो बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस होती है, मैं कुछ कहता हूँ, फिर वो कुछ प्लान करके आते हैं, फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। तो एक कैरेक्टर को उसका इंटीरियर लैंडस्केप को समझना और उसके अंदर क्या चल रही है उसको ठोस करना, वो हमारी कोशिश रहती है। और उसमें बहुत वक्त लगता है, महीनों का वक्त लगता है, कॉन्वर्जेशंस होती है, वर्कशॉप होती है शायद 3 से 5 दिन, बट कॉन्वर्जेशंस इतनी होती है कि एक बार हम सेट पे पहुंचते हैं, वो इंटीरियर लैंडस्केप तैयार रहता है, क्योंकि फिर बाहर के बहुत तगड़े लैंडस्केप्स हैं इसके, मूविंग ट्रेन है, नदियाँ हैं, पहाड़ है, डैम्स हैं, आयरन और माइन है, उसको आप जितना भी प्लान कर लो, जितना भी मैप कर लो, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा, आपको बोला जाएगा गूगल पे कि ये 48 डिग्रीज होगा इस दिन, आप पहुँचोगे 53 होगा, और आप 300 लोग लेकर पहुँचोगे, तो उसको आप पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते। पर इंटीरियर लैंडस्केप आपके ग्रिप में आना जरूरी है। दैट्स अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस, नॉट जस्ट वन ब्रीफ। आई एम श्योर सर कि कोई भी कैरेक्टर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में आपके साथ एक 3 महीने की बच्ची है, सो आई एम श्योर इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए 3 महीने की बच्ची को लेकर के जब माँ भी घूमती है तो उसको भी बहुत तकलीफ होती है, और 3 महीने की बच्ची के साथ कब सोना है, कब उसको उठना है, कब दूध पिलाना है, सो एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल। वो कुछ समय के बाद ही जाकर के उसका एक रूटीन बनता है कि ये इसमें सोती है, ये इसमें जगती है, एक टाइम लेती है, एक बच्चा टाइम लेता है। बच्चे इतने फ्रजाइल होते हैं, इतने नाजुक होते हैं, उनके साथ में एक्शन वाली फिल्म करना जिसमें कि बाप भाग रहा है बच्ची को लेके, और उनके गर्दन भी बहुत ही नाजुक होते हैं, सो उसको सपोर्ट देते हुए, उसका ख्याल रखते हुए, और वो ठीक शॉट के पहले उसका चेहरा इसमें ढक करके, आप बच्ची को पता नहीं चल रहा है कि ये हो क्या रहा है उसके साथ में, और ठीक शॉट के पहले उसके चेहरे पर से हम उसको कवर करते तो भागना शुरू करता था मैं, और जैसे ही शॉट खत्म हुआ उसका चेहरा खोलता था मैं। ये और फिर गन्स चल रहे हैं, बुलेट्स चल रहे हैं, ब्लास्ट इधर है हो रहा है, ठीक बगल में हो रहा है, तो उसके कान में रुई डालना, अपने कान में रुई डालना। सो फॉर दैट लिटिल वन शी डजंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट एट द सेम टाइम आई मस्ट टेल यू दैट कि अगर मैं कैरेक्टर के अंदर में अचानक से सच में गहरा चला गया, और वो भी ज़्यादा नहीं जा सकता, बिकॉज मेरे हाथ में एक बच्ची है, जीती जागती जिंदगी है मेरे हाथ में, क्योंकि अगर मैं भूल गया, अगर वो स्लिप हो गई, अगर मैं भाग रहा हूँ गलत गिर गया, तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हमने किस हालात में इसकी शूटिंग की, बट जो रिजल्ट आया है वो इतना माइंड ब्लोइंग है कि सारे जितने भी मेजर फेस्टिवल्स हुए, और जोरम सारे मेजर फेस्टिवल्स में बहुत ज़्यादा तारीफ की गई, और जब यहाँ पे आई है तब ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्टिनेंट में इसको बहुत सारे लोग देख चुके हैं, और जितने भी स्क्रीनिंग हमने यहाँ किए हैं मतलब कमाल हुआ है, कमाल की स्क्रीनिंग हुई है, एंड आई एम वेरी होपफुल कि जो बाकी के लोगों ने जो देखी है और जो जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, आप लोग भी देखोगे तो आप उसी तरह से रिस्पॉन्ड करोगे। सर बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है अबाउट दिस लिटिल गर्ल, जो हमने आगे भी बात की थी। आई थिंक सबको इस सुनने में मज़ा आएगा। कास्टिंग इस बच्ची की कैसे हुई थी? उसके पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि एक पूरी टीम है ऐसी चीज़ के पीछे, क्योंकि एक छोटी बच्ची के लिए एक फिल्म का शेड्यूल बिठाना वो एक डायरेक्टर के बस की बात नहीं है। तो बहुत सारे लोग थे, हमने उस बच्ची को स्टडी किया, उसके पेरेंट्स के साथ, वो बच्ची जागती कब है, सोती कब है, रोती कब है, मतलब क्या उसके मूड्स है, उसके मूड्स के अराउंड वो शेड्यूल बिठाया गया। अब वो बच्ची की कास्टिंग मेरी लाइफ की सबसे मुश्किल कास्टिंग थी, कंपेयर टू मनोज सर की कास्टिंग सबसे इजी कास्टिंग क्योंकि अगर हमको पहले हमको शूट करना था मार्च में,
तो आपको अगर मार्च में करना है, 3.5 महीने की बच्ची है, तो वो दिसंबर 1 पे पैदा ही नहीं हुई है। तो हमको दिसंबर एंड जनवरी में मार्च की प्लानिंग करनी थी। तो वो 1-1.5 महीने की बच्ची जिसको हम देखकर इमेजिन करना पड़ रहा था कि वो 3.5 महीने तक कैसे दिखेगी, क्या क्या उसके क्वर्क्स होंगे। और फिर मेरे डेट शिफ्ट हो गई कि जनवरी में कोविड का 3rd वेव आया, तो बहुत सारी बच्चियाँ कास्ट हुई, फिर उनको मुझे हटाना पड़ा क्योंकि वो मई तक 6 महीने की हो जाती। फिर वो फरवरी में हमने दोबारा से शुरू की प्रेग्नेंट औरतों को ढूंढना, जैसे वो मार्च में बच्ची पैदा होगी और एंड में जून तक वो 3-3.5 महीने की होगी। तो ये बहुत ट्रिकी कास्टिंग थी और बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व थे। बट आई एम श्योर जो हमने ट्रेलर में देखा, जैसा कि सर ने कहा, रिजल्ट सही में बहुत अच्छा है। स्पेशली अगेन से द सीन वेयर मनोज सर बच्ची को पानी पिला रहे हैं, वो गूज़बम्प्स वाला सीन है। सो सर, जोरम आपके लिए क्यों स्पेशल है? देखिए, हर फिल्म की अपना एक कारण होता है। जोरम, पहली बात तो ये कि इस साल की मेरी साल खत्म हो रहा है और ये साल की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई थी मेरे लिए। जोरम जो मेरी बड़ी स्पेशल फिल्म है, उसके साथ ये साल का अंत हो रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब मैंने कहानी सुनी थी, तो जो बाप और छोटी बच्ची का रिश्ता था, उसने मुझे डराया भी और उसने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी किया इस स्क्रिप्ट की तरफ, क्योंकि बड़ा अनोखा, बहुत ही यूनिक एक कहानी का हिस्सा था, जिसमें बाप अपनी बेटी को, छोटी बच्ची को लेकर भाग रहा है। वो अपने आप में पूरा जो विजुअल था मेरे दिमाग में घूम गया। लेकिन उसमें मेरा कंसर्न ये था, जो मैं देवशीष से मैंने कहा, यार फर्स्ट यू हैव टू अश्योर मी दैट द बेबी विल बी प्रोटेक्टेड, बेबी विल बी सेफ, क्योंकि इसके बिना हम जा ही नहीं सकते। बिना हम एक तरीका निकाले हुए हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम कुछ और तैयारी करना शुरू कर लें, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 3 months old baby, and I know we are also in the same breath we are talking about action and jungle and mines. So once you really convince me with all the preparation, then only we should go on the set. There is a yes, sir, that I don't know. I don't have an answer right now, but I'll definitely find out a way to do it. But eventually they've done it, and they've done it so well. इसमें एक पूरी टीम बनाई थी, 3 लोगों की। उनका काम था सिर्फ बच्ची को, जो भी बच्ची के इर्द गिर्द जितने चीज़ें थी, उसको पूरा सेफ्टी नेट तैयार करना, and they have done it so well. Great. So, हमारा मीडिया ना फ्रेंड्स, now if you have any questions, कोई पूछवा हुआ है? Yes. उसके पहले 5 फिल्म फेस्टिवल में गई थी, 21 में बनी, तो 23 के दिसंबर में रिलीज होने का वही जब होती। अच्छा, 21 में एक्चुअली ग्रीन लाइट हुई, प्रोडक्शन शुरू हुआ, शूट हुई है पिछले साल, और 5 फेस्टिवल्स ही नहीं, एक्चुअली 25 से ज़्यादा करी है। 5 कॉन्टिनेंट्स। These are the 5 कॉन्टिनेंटल प्रीमियर्स। तो फेस्टिवल जर्नी का थोड़ी पीछे का है, वो कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट आपको प्रीमियर क्रैक करना पड़ता है। वी डिड 5 बिग फेस्टिवल्स इन ईच कॉन्टिनेंट, और उसके बाद बहुत सारी और फेस्टिवल्स हुई हर कॉन्टिनेंट। तो वो एक जर्नी मैं हर फिल्म के साथ पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं 1-1.5 साल की जर्नी करूँ, क्योंकि वहाँ से फिर भरोसा आता है सबको कि यार ठीक ठाक फिल्म बनी है, अब इसके साथ कुछ करा जा सकता है। So this is a version of life is beautiful of the Nazis, the son and father. I don't know. It's a very different tone. It's a very different intent. There, even that father and son relationship, quite like Bicycle Thieves, plays out in a very different way. Here, this is about surviving. It's about protecting the legacy, protecting the future. Because what we are doing to our world, with the amount of deforestation that's going on, हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? इसलिए फिल्म का नाम भी जोरम है, क्योंकि उस लेगेसी से हमने ये नाम लिया। जैसे हिब्रू नेम, इससे हिंदी इससे परमात्मा उदित। No, so this word finds its presence in a lot of languages, but in the Adivasi communities in the belt from the northeast through Jharkhand, it's an Adivasi name. It has nothing to do with the Hebrew word. It's even pronounced a little differently. Manoj sir, congratulations and all the best for the movie. मेरा सवाल ये है कि आपको इस फिल्म ने क्या अट्रैक्ट किया, दैट्स व्हाई यू हैव साइंड दिस फिल्म? बताया मैंने,
क्योंकि जो बाप बेटी का रिश्ता है, एक बड़ी जो छोटी बच्ची है जो बात नहीं कर सकती है, और जो ये आदिवासी आदमी हैं वो भी मतलब अपने हालात के कारण उसकी भी आवाज़ एक तरीके से बंद हो चुकी है। तो दोनों खामोश रहते हैं और दोनों एक दूसरे से तब भी उस चुप्पी में बात करते हैं। वो एक बहुत बड़ी कमाल की वो जर्नी है, जब आप फिल्म देखेंगे तो समझेंगे। उसने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। Sir, you are the powerhouse of acting. What empowers you to act? Silence or acting? What do you do? Acting, Inside or so acting that word and the acting that act, that attracts me. That's why I become an actor. Because when I'm acting, I'm completely away from everything. I'm cut off from all the surroundings. Acting gives me expression. Acting when I'm preparing or acting, that is the time of meditation for me. That is the time I'm more closer to my God than any time. So I'm never the happiest I am in my day when I'm facing the camera or I'm preparing for the role. Hi sir, Hello. this is RJ Kiran from Top FM. Sir, आपकी वजह से बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है हमें थिएटर में देखने के लिए या फिर सीरीज में देखने के लिए। आप हर बार एक नए कैरेक्टर के साथ आते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट कि कुछ नया एक्सपीरियंस, कुछ अलग आउट ऑफ द बॉक्स आप हर बार देते हैं। लेकिन एक ट्रेंड क्लास मास रोमांस का जो चल रहा है, तो आपको एज अ एक्टर, एज अ पर्सन कभी फील होता है? क्योंकि एज अ ऑडियंस हमको फील नहीं होता कि हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं आपकी साइड से, लेकिन एज अ एक्टर आपको ऐसा फील होता है कि आप कुछ मिस आउट कर रहे हो ट्रेंड से? मैं ट्रेंड फॉलो करने वाला आदमी हूँ नहीं। मैं हैशटैग को फॉलो करता हूँ, मैं किसी ट्रेंड को फॉलो करता हूँ, कभी नहीं किया। नेक्स्ट ईयर 30 इयर्स का मेरा करियर हो जाएगा। कभी ऐसी ज़रूरत नहीं महसूस हुई। दूसरा ये है कि और मुझे डर नहीं लगता, मैं आपको सच में बोलूँ। ट्रेंड कोई तभी फॉलो करता है अगर वो इनसिक्योर होता है या उसके पास अपना कुछ देने के लिए नहीं होता है। मेरे अंदर में फेल होने का डर नहीं होता है। तो जब मुझे फेल होने का डर ही नहीं है, तो शायद इसलिए भी डर नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा रिजेक्शन हुई है ज़िंदगी में कि अब उससे डरना ही बंद कर दिया। तो दैट मे बी द रीज़न, बट आई नेवर फेल्ट द अर्ज टू फॉलो एनी काइंड ऑफ ट्रेंड. I have done mainstream cinema, but I have done it when I thought that it's a good role and it has a good position in the script and I'll be taken care of. And I have done it thinking that if this film becomes successful, I will get strength, I'll get market behind me to be part of a film like Joram. I can get money to a film like Joram, so that I can do what I want to do. So that has been the strategy. I don't continue to be in mainstream films because right now or for many years mainstream has only been making very predictable stories, and after a point you get bored. That is why I love doing independent cinema. I love doing middle of the road cinema. I will definitely do a mainstream film if it offers a fantastic role and a fantastic script. If you ask me, सिर्फ एक बंदा काफी है, which became humongous success. It was also a mainstream film, but look at the story, look at the character, the relationship, the conflict. So all of it has to be of some great quality. Otherwise, I'm very happy doing everything that I have been doing. थैंक यू सो मच और बहुत अच्छा लगा, ग्लैड टू सी यू। और मुझे जानना था कि आपको नहीं लगता, क्योंकि एज अ फैन, एज अ ऑडियंस हमको बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप Thank कुछ you. भी कम कर रहे हो। थैंक यू सो मच। सर, एक सवाल है कि आपका जो कैरेक्टर है, इट्स मेक अ स्टेटमेंट
on development process and concept of development. What we are, 5 trillion economy. Is there any echo or any identity in your film or in statement of your film? See, that is something you can or cannot take away when you see the film. But of course, it comes from a certain rage against the idea of making this film comes from a certain rage against the choices that we've made for centuries. Our choices have always been driven by, I might sound a little intellectual here, but there's a word that I use when I'm trying to understand my stories to be able to explain them to people. It's anthropocentrism. हम इंसान को हर चीज के बीच में प्लेस करते हैं. तो एक मुर्गी हो या बकरा हो, हम उसको खाने की तरह देखते हैं. उसको एक मुर्गी या एक बकरे की तरह नहीं देखते. Is this a statement of your film? I'm correct. I'm saying that this is a thought process that drives my rage to come up with the stories that I tell. This story is about an Adivasi. And an Adivasi somewhere in, a lot of Adivasis whose land is ultimately taken for development, they are voiceless. They are not close enough to the mainstream to be heard when they want to have a conversation about what is it doing for them. So this film is trying to bring that conversation into the mainstream. एक्सक्यूज़ मी सर, मैं से पार्थ दवे. मैंने ये फिल्म मामी में देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी. और ये फिल्म में मनोज सर ने इसका ट्रेलर दिखाया था, मैं वहाँ भी था और उन्होंने कहा था कि ऐसी भी फिल्में देखनी चाहिए. तो मुझे ये देखना है कि अभी पूछना है कि अपने भोंसले और तांडव साथ में किए मनोज सर ने. तो मनोज सर, आपको देवाशीष मखीजा का जो सिनेमा है, आपने अभी ट्रेंड की भी बात की कि ये जो अब ट्रेंड की परवाह नहीं करते, जो ये जो देवाशीष मखीजा का जो सिनेमा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो अलग स्टाइल है इसकी? बाहर जाके बात कर लीजिए आप लोग. धन्यवाद. Let's do this, finish this. Okay. देवाशीष मखीजा मेरी तरीके के डायरेक्टर हैं, जो बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड जो एरियाज हैं ह्यूमन बीइंग के, या फिर सोशल इश्यूज हैं जो अनटैप्ड हैं, उसको बहुत डीप में जाके बात करते हैं. वो किसी पे वो इल्ज़ाम नहीं डालते हैं, बट ही ट्राइज टू एक्सप्लोर दैट टॉपिक, ही ट्राइज टू एक्सप्लोर दैट इशू, एंड बहुत सारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को भी लेके आते हैं उसमें, और उसमें गहरा उतरते हैं. एट द सेम टाइम मुझे ये जितना मेरे डायलॉग्स रिड्यूस करते हैं अपने हर प्रोटोकॉल वर्जन में, स्क्रिप्ट के वर्जन में, मुझे उतना ही अच्छा लगता है. बिकॉज इट गिव्स मी अ चांस टू go really deep into my own self and explore the character. He gives me a lot of freedom after he's done with his readings and his whatever he has to give it to me. He just lets me be, and if I have any question, I always get back to him. So there is that comfort zone, and also there is a lot of mutual admiration, okay, for each other's work. I have great respect for his mind and the way he designs a film, the way he hires talent. That is something anyone can learn from him. No,